All of you can see the presentation, right? Yes, ma'am, it is visible. Okay, so today we'll try to understand the philosophy of Sufism and we'll try to relate it with psychology. Okay, so before delving into Sufism, uh, can you tell me the origin of Sufism? अगर हम religions की बात करते हैं तो सूफिज्म किससे ज्यादा रिलेट कर पाता है? मैम इस्लाम से। इस्लाम से। तो we'll initially we'll try to talk about the philosophy of Islam because that is the base of Sufism. Okay, and then we'll start with the philosophy of Sufism. So Islam, as you all know, is one of the largest and fastest growing world religion. Okay, and it initially began with Prophet Muhammad approximately 1400 years ago in Arabian Peninsula. And if we talk about the main philosophy, main teaching of Islam, uh, so it teaches about that there is ultimately one reality, that is God, or they call it Allah. Okay, so according to them, only that one reality is real, and that is the ultimate goal to attain. So it is self existent and self sufficient, and all creation depends on God. So they are describing the characteristics of God or Allah. So according to them, it is self existent, मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, खुद ही एग्जिस्ट करता है, वो कोई उसका भी कोई और रीजन नहीं है. तो सेल्फ एग्जिस्टिंग एंड सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है. God permeates all creation, but no single sentient being can be equal to God in entirety. That simply means that जो भी कुछ क्रिएटेड है हमारे प्रकृति में, ठीक है, नेचर में, चाहे हम बीइंग्स हों या नॉन बीइंग्स हों, कोई भी, तो गॉड परमिएट्स एवरीथिंग, यानी कि ईश्वर सब में है. वो सेम फिलॉसफी, अल्लाह सब में है. ठीक है. लेकिन कोई एक इंडिविजुअल अगर हम बोले सेंशियंट बीइंग इज लिविंग बीइंग है. ठीक है. अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो दैट इंडिविजुअल कैन नॉट बी इक्विवेलेंट टू गॉड एंटायरली. ठीक है. तो देयर इज अ डिफरेंस. गॉड सब में है, अल्लाह सब में है, बट कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि वो अल्लाह के बराबर है. इट इज लाइक दैट. सो गॉड, एनी क्वेरी? Okay. God is without and within all beings, and thus can be found at the innermost center of all human beings. Again, similar thing it is written here that God is there in all beings, in the innermost center of all human beings. ठीक है, हम सब में अल्लाह वास करते हैं. In this way, all human beings are equal with respect to God. So that means we all are equal because as God lies or in all of us. ठीक है, ईश्वर अल्लाह जब हम सब में है तो यानी कि हम सब एक समान हुए. तो again it also promotes that common brotherhood feeling again कि हम सब एक ही हैं. Human beings are uniquely Excuse me, positioned. ma'am, your voice is breaking a lot. Okay. Ma'am, it's not breaking at my end. It is with, is it with everyone? सबके साथ हो रहा है? नहीं, ma'am. मेरे साथ भी नहीं। Okay. कहाँ पे नहीं आप लोगों ने सुना? Now it's okay, madam. Okay, fine. So I was saying human beings are uniquely positioned with special potential to consciously experience their unity with the creator. Again, a similar kind of philosophy जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक. So they also talk about the fact that we all have potential. हम सब में क्षमता है.
ठीक है, किस बात की क्षमता है? टू एक्सपीरियंस यूनिटी, यूनियन, जो हम जैसे योग की बात करते हैं ना ईस्टर्न फिलोसफी में, सिमिलरली दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट यूनियन और योग, है ना, विद होम, विद द क्रिएटर, विद द सुप्रीम पावर, विद द अल्लाह, विद द गॉड। ठीक है, Islam literally means, this word literally means peaceful surrender in Arabic. Okay, so it refers to the process of yielding all human will to the divine will. इसको simplify अगर हम करें तो एक phrase हम लोग use करते हैं that we all are mere instruments in the hand of God, या फिर हम जो कुछ कर रहे हैं हमें ईश्वर की इच्छा के साथ सिंक में होके करना चाहिए, राइट? तो ये हम जनरली ईस्टर्न फिलोसफी में ये सारे टर्म्स हम बात करते हैं, खुद को एज अ इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। वो क्यों होता है? इसलिए ताकि हमारे अंदर प्राइड ऑफ डूअरशिप ना आए। तो कहते हैं ना हम कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हमारा रोल नहीं था, हमने इसमें कुछ एडिशनल नहीं किया अलग से, सो दैट यू डोंट हैव दैट सेंस ऑफ प्राइड एंड डूअरशिप, बिकॉज दैट लॉट ऑफ ट्रबल इन आवर माइंड, इन आवर लाइफ। ओके, टू अवॉइड दैट, उस चीज से फ्री होने के लिए वी ऑलवेज से दैट देयर इज सम हायर पावर हु इज मेकिंग अस डू ऑल ऑफ दिस। तो सिमिलरली दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यील्डिंग ऑफ ह्यूमन विल। अगर आपके मन में इच्छा हो रही है कि आपको कुछ अच्छा काम करना है, तो वील से कि वो डिवाइन विल है, ईश्वर की इच्छा है, अल्लाह की इच्छा है। ओके, एंड अल्टीमेटली जब हम डिवाइन विल के थ्रू काम करते हैं, देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन वी विल फील यूनिफाइड विद द डिवाइन। हम उस डिवाइन पावर के साथ मर्ज्ड और यूनिफाइड फील करेंगे, ओके, कंप्लीट फील करेंगे। नाउ starting with Sufism. So Sufism is very like inner dimension of Islam. The word esoteric here means a small group of people जिनको इसके बारे में पता है। So Sufism is a like small group within like originated from Islam itself, ठीक है, जो इस बारे में बात करते हैं, ठीक है, they have their own ways to feel connected with divine. So scholars generally trace the root term Sufi. ये वर्ड कहाँ से आया? तो जो वर्ड सूफी है उसका कहते हैं जो ओरिजिन है, इट कुड बी फ्रॉम द वर्ड सूफ which means a woolen garment worn by some early Sufis. तो आपने जनरली देखा है कभी सूफीज को आप देखते हो तो they used to wear this long gown or long dress, ठीक है, और इट इज जनरली वुलन इन नेचर, तो उसको सूफ कहा जाता था। तो कहते हैं वो जो सूफी वो जो ड्रेस पहनते थे सूफ, उससे इसके लिए उनका नाम सूफी पड़ गया था। बट देयर आर सम अदर स्कॉलर्स एज वेल हु यूज्ड टू से दैट सूफी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साफी। सूफी वर्ड साफी से निकला है एंड साफी मींस प्योरिटी, ठीक है, और साफी का मतलब होता है प्योरिटी। Then according to late medieval mystic Jami Abd Allah ibn Muhammad ibn al-Hanfiyya, I'm sorry if I am pronouncing it in a wrong way, but I'm still trying, ठीक है। So ये I guess संत थे उस समय के लेट मिडिवल पीरियड में, वहां के संत थे, सूफी संत थे, और ही वॉज द वन जिनको पहली बार सूफी कह के पुकारा गया था, जिनको डिनोट किया गया था सूफी से, ठीक है। सूफिज्म इज एन इस्लामिक वे ऑफ रीचिंग गॉड विच इन्वॉल्व, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? रिगरस मेडिटेशन एंड प्रेयर, एम्फसिस ऑन इनर सेल्फ, अपने अंदर ज्यादा एम्फसाइज करना रेदर देन फॉलोइंग एक्सटर्नल रिचुअल्स, ठीक है, एक्सटर्नल रीति रिवाज से ज्यादा बेटर वो खुद के अंदर फोकस करते हैं, मेडिटेशन प्रेयर में बिलीव करते हैं, कॉन्टिन्यूस सर्विस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, ठीक है, समाज के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, एंड देन रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स। तो जो सेंस प्लेजर्स हैं, जो दुनिया भर में हम मटेरियलिस्टिक प्लेजर गेन करना चाहते हैं, उसको रिनंसिएट करना, उसको त्याग देना, ठीक है। In Islamic world, it is popularly known as the Sufism, को जनरली इस्लामिक वर्ड में तवस्सुफ भी कहा जाता है, ओके। लेकिन जो वेस्टर्न राइटर्स होते हैं they termed it as Islamic mysticism, ओके।
Now, if we talk about again the origin of Sufism, we can go back to 8th century, uh, when said that first Sufi used to live. So basically, there were orders, various Sufi orders which came like after that 8th century, 12th century, 13th century, like various Sufi orders established themselves. Few of them we have mentioned here, not all of them, but few of them. The Suhrawardi order originated in Iran and spread to India. ठीक है, तो जो ऑर्डर्स इंडिया तक पहुंचे हमने वहां यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स को मेंशन किया है. तो वन इज सूरावर्दी ऑर्डर जो कि ईरान में ओरिजिनेट हुआ था और इंडिया तक आया था. एंड हेयर इट गेन मोर प्रोमिनेंस एंड स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस. तो यहाँ पर उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, उनको अहमियत मिली, and gradually it also divided into number of further branches. Then one of the order is, Ma'am, what does the word order mean here? okay, you can, जैसे हम कल बुद्धिज्म में भी बात कर रहे थे ना, उनके अपने काउंसिल बने, उनके अपने तौर तरीके थे, Yes. है ना. तो सिमिलरली यहाँ सूफिस्ट में या इस्लाम में पंथ बना करते थे, मतलब है ना, पंथ वर्ड जनरली वो लोग यूज करते हैं. तो पंथ बनते थे जहां पर ये मतलब दे यूज्ड टू हैव देयर ओन सेट ऑफ मेथड्स ना. Ma'am, can we say तो- schools, different schools of Sufism? काइंड ऑफ हाँ, मतलब इसमें लेकिन वो लोग वर्ड ऑर्डर ही यूज करते हैं. ये एक ऑर्डर बना, फिर एक दूसरा ऑर्डर बना. तो दे यूज्ड टू हैव देयर ओन फिलॉसफी, देयर ओन मेथोडोलॉजी टू अचीव Oh. द हायर Ma'am, अथॉरिटी. Ma'am, for that, silsila word is also used. Chishti silsila or Okay. more. Yes, ma'am. Silsila word is used in their language. Yes. Then I guess silsila, right? You are saying order word को ही सिलसिला बोला होगा ना उन्होंने? Yes, ma'am. Order हाँ, word को I silsila get it, कहा yes. गया. जी मैम. Right. कादरी सिलसिला. Hmm. The Naqshbandi is a major Sufi order which became popular in Central Asia later on, Kurdistan and Indian subcontinent. So this is also one of the famous silsila, you can say. Nice word. The Chishti order, again, it was founded in India. India में Chishti order found हुआ था by Khwaja Muin al-Din Hasan Chishti, whose shrine is still visited by millions of people every year. ठीक है, तो आज भी लोग उनके श्रीन पे जाते हैं विजिट करने के लिए. Then Sufism was brought to Europe and America by the great Indian Sufi master Hazrat Inayat Khan. इनका नाम भी काफी आता है. So by him, this Sufism was taken to the Western world. And he belonged to this Chishti order or Chishti tradition, and he brought the message of love, harmony and beauty to the West. तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सूफिज्म को वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन लेके गया, तो you need to remember the name Hazrat Inayat Khan. Now coming to the main perspective, connecting Sufism with psychology. So as we have already discussed that Sufism is the inner dimension of Islam, right? And its teaching is also based on the teaching of Prophet Muhammad and the Holy Quran. ठीक है, तो जो मेन उनका जो ग्रंथ माना जाता है इस्लाम में, होली कुरान में, so Sufism is based on somewhere on that philosophy. The main object of psychology study is the human being as a wealth of body and soul. In psychology, the human body can function or act when the soul is able to move in it in the form of motive. Okay, don't be confused with this. Basically, they are trying to talk about the philosophical aspect. ठीक है, जब हम वेस्टर्न फिलोसफी भी, जब वेस्टर्न साइकी की भी बात करते हैं, उसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो हम प्लेटो और एरिस्टोटल इन सब की बात करते हैं, सोक्रेट्स की बात करते हैं. एंड इवन दे यूज्ड टू टॉक अबाउट सोल, स्पिरिट, इस तरीके की बातें करते थे. एंड ग्रेजुअली दैट इज द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जहां से लेटर ऑन this word psychology has been derived, right? As I guess we have discussed, the word psyche itself means soul. So similarly, they are also treating it as the study of
body along with soul, and our body is being able to move because we have soul, or we can say we are the soul. So again, it is similar to the concept of consciousness, and without consciousness there is no no meaning of this body. Our body cannot move. Okay, when once the consciousness is out of this body, our body cannot move even, right? The same thing is also part of Islamic studies or tawassum or Sufism. Okay, in his book of Sufi psychology, Essential Sufism, this is the book, Robert Fraser asserts that Sufism is very holistic approach, for it integrates what? Physical, psychic, and spirit. Okay, so he says this approach of Sufism or teaching of Sufism talks about integrating your physical level, yani ki your body level, your psychic energy, which includes all your thinking part, your mind, your cognition, your everything, and the spirit part. Okay, जिसको हम simple words में mind, body, soul बोलते हैं. He underlines that Sufism is a spiritual discipline for all people without class and caste. So, for them, Sufism is spiritual as well as universal in nature because it is meant for everyone. Its teachings are universal in nature. Okay, जब हम later on अभी इसकी teachings पे भी जाएंगे, you will be easily able to apply all these teachings upon your own self. Okay, and so it it is devoid of any kind of discrimination or biasness because it is applicable to everyone, each and everyone, despite of their caste or class. So humans are made up of souls and bodies that cannot be separated from one another. So according to them, we all are composed of soul as well as body, and as far as we are alive, it is integrated. Our soul is integrated with our body, or our body is integrated with our soul. So there are three central ideas in Sufi Islamic psychology. What are these? What are the major ideas they talk about? One is nafs, another is qalb, and third one is ruh. Nafs, qalb, and ruh. Okay. Nafs is also called as self, ego, or psyche. Qalb can be referred as heart, and ruh is the spirit. We'll go into the details. Starting with nafs. So according to Ahmad, the term nafs in Al-Quran has many meanings. ठीक है, अगर हम कुरान के पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हैं तो the term nafs has several meanings. It can means self. It can means totality of people who have physical and spiritual dimensions. Okay, तो या तो वो कह रहे हैं नफ हम सेल्फ को बोल रहे हैं, बट अगर हम सेल्फ को भी थोड़ा और डिफाइन करने की कोशिश करें तो कुछ लोग समझते हैं व्हाट वी आर, whether it is our body or spirit all together, integrated together, that is nafs, or it is the inner side of human that gives birth to behavior. So some people consider it as the innermost side, okay, because of which we are alive, because of which we are what we are, how we behave, है ना? So that is something intangible, invisible, intangible something. Okay, that is nafs. So in short, in a nutshell, they are talking about self only. According to Sufism, nafs is one of the psychological stages through which human psyche needs to pass on for its perfection. Okay, again, you can understand this concept with the basis of the understanding of self-care. जो हमने भगवद गीता में पढ़ा, जो हमने बुद्धिज्म में पढ़ा, वहां पर भी हम सेल्फ की कहीं ना कहीं बात कर रहे थे. ऑल्दो बुद्धिज्म में सोल की बात नहीं होती है, बट सेल्फ की होती है. ठीक है, सो देयर आल्सो वी वर लाइक द मेन गोल इज टू अटेन सेल्फ, टू रीच दैट
actual self, to connect with self. Similarly, they are trying to say, if we want to reach our highest potential, that perfection level, we have to connect with self. We have to pass this stage of naf. Okay, we have to connect with naf. Okay, enabling the ecstatic sense to know the unknown, because that is the only way by which we can know what is unknown. अगेन ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में बात की जाती है हमेशा अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करने की. ओके, लाइक इन साइकोलॉजी वी टॉक अबाउट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. बट इन ईस्टर्न साइकोलॉजी और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, there is no as such layers of consciousness. They mainly talk about consciousness as a whole. They say each and everything that is unconscious, we all are being able, we all have potential to make that unconscious conscious, and that is our goal. Simple बात, अगर हम इसको simple words में explain करें तो again knowing your own true potential. ठीक है, एवरीथिंग इज देयर विद इन यू, सारा पोटेंशियल हमारे अंदर है. इट इज जस्ट दैट कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. हमारे सरफेस लेवल पे हमें पता नहीं है. बट द मोमेंट वी गेट कनेक्टेड विद आवर ओन सेल्फ, जैसे हम अपने सेल्फ के साथ जितना कनेक्ट होते जाते हैं, वी बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ आवर ओन सेल्फ, more and more aware of our thoughts, our feelings and everything, and gradually our potential also expands. हमारा जो अनकॉन्शियस सब कुछ स्टोर है ना, वो वहीं से तो अवेयरनेस आ रही है. जब हम अवेयर हो रहे हैं तो इट इज जस्ट दैट वो दैट इज अनवीलिंग इन द सेंस कि अगेन एवरीथिंग इज देयर. एक रूम है बट उस रूम में अंधेरा है. द मोमेंट यू स्विच ऑन द लाइट यू कैन सी एवरीथिंग. इट इज सिमिलर टू दैट. ठीक है, तो सब कुछ है हमारे अंदर, but we need to connect with that self, and the moment we connect with that self, it reveals everything, all the knowledge. So from the Sufi point of view, the nafs, translated as the self or ego, is developed from and influenced by material nature with which each individual human being is born. And that self, Sufist saints are saying, that self is affected by the material nature, whatever the nature around you. Ab again, if you want to understand this concept, it is quite similar to the concept of हमने जो त्रिगुणा पढ़ा, प्रकृति पढ़ा, पुरुष प्रकृति हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. बट प्रकृति is what? Nature, and we all are composed of that prakriti, and that prakriti is composed of triguna, right? So but actually जो हमारा self है, जो हमारा behavior है, it is driven by those three gunas, and those three gunas are part of prakriti. Similarly, they are trying to say the self, the actual self or the ego or the naf, it is influenced by the material nature. Okay, जिससे हम बने हैं. Is it fine till here? समझ में आ रहा है ये सबको? Yes, ma'am. It's clear. Okay. So your naf is your first battlefield. If you are victorious over it, then you will find the other battlefields easier. So they are trying to say यहाँ पे, this is one of the quotes about naf. They are talking in perspective of the desires of naf. ठीक है, self is a broad dimension, मतलब is a broad construct which has number of dimensions. ठीक है, so desire वाला part is also one of the dimensions. self है, उससे associated कुछ desires है जो कि उस material nature से driven है. But the moment, the very first step when you try to connect with yourself is those desires at the surface level which arise. Okay, and that is our first battlefield. We have to fight all those desires. Okay, we have to win all those desires. Uske baad other things will appear. Okay, it's a process, है ना? तो again connecting it with what you have read so far, आपने जितना अभी तक
ईस्टर्न फिलोसफी के बारे में जाना है, पढ़ा है, तो वहां सब में हम स्टेजेस की बात करते हैं. Initially there are certain stages which we have to cross with before reaching that samadhi stage, right? And there are obstacles जो बार बार आएंगे, but भगवत गीता में भी पढ़ा था, प्रैक्टिस, अभ्यास, वहां भी बोला गया है, you have to practice it, perseverance, you have to be constant on your path, बार बार कोशिश करनी है, बार बार कर्म करना है. Okay, so similarly they are trying to say that is your first battlefield initially, and gradually जैसे ही आप उसको पकड़ लेते हो, उसको जान जाते हो, अपने थॉट्स पे, इमोशंस पे ओवरकम करते हो, अपने डिजायर्स पे आपका थोड़ा कंट्रोल आना शुरू होता है, या एटलीस्ट आप उनके ओरिजिन तक पहुंच पाते हो. ठीक है, तो ग्रेजुअली अदर बैटलफील्ड्स और अदर इश्यूज विल अकर सामने से, एंड यू विल बी एबल टू नो योरसेल्फ बेटर. Now we'll talk about various levels of naf. The psychology identify 7 level of naf which have been identified in Quran. ठीक है, 7 levels की बात की गई है जो कि कुरान में बताए गए हैं. And this is important from your exam perspective, क्योंकि सूफीज्म में repeatedly इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है. ठीक है, आई गेस एटलीस्ट थ्राइस 3 बार इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वर्किंग थ्रू दीज लेवल. तो हमारे जो सेल्फ की अभी हम जर्नी की बात कर रहे थे, टू नो योर ओन सेल्फ, टू रीच दैट स्टेज, टू कनेक्ट विद सेल्फ, तो इट हैज सेवरल फेजेस. ठीक है, तो यहाँ पे 7 लेवल्स की बात की गई है. द वेरी फर्स्ट लेवल इज रेफर्ड एज tyrannical naf, और उर्दू में it is referred as nafs al-amra. Okay, it is associated with blue color. Will try to understand each and every level of naf. ठीक है, this is just a brief overview. What are the 7 nafs, 7 levels of naf? Second level is regretful naf, which is referred as nafs al-lawma. The third is inspired naf, that is nafs al-mulima. And fourth is the tranquil naf, nafs al-mutmina. The happy naf, nafs al-radiya. The nafs which is pleasing to God is the 6th one. And lastly, the sacred nafs, nafs al-kamila. Okay, so these are the 7 nafs. Starting with the very first one, that is a tyrannical naf. So according to Fraser, this naf is defined as the one which dominates or commands the crime. Okay, so यहाँ पर क्या हो रहा है, हम अपनी हैबिट्स, अपनी नेगेटिव हैबिट से बाउंड फील कर रहे हैं. This is that self which is dominated with negative thoughts, आप कह सकते हो, negative habits, negative thoughts और attachment, इस तरीके की चीजें. It is that level of naf. क्योंकि अभी आप देखते जाओगे, हम जैसे जैसे लेवल अप करते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे. ओके, सो दिस इज द दैट वीकर स्टेज जब हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव हैबिट्स हमें डोमिनेट कर रही हैं. द टर्म अमरा, नफ्स अल अमरा बोलते हैं ना, द टर्म अमरा लिटरली मीन्स रिपीटेड कमांड्स और हैबिट्स. सो दिस लेवल इज कॉल्ड द अनोइंग नफ. इसको हम अनोइंग नफ भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड कमांड्स है, रिपीटेड हैबिट्स है. कभी कभी हमें पता भी होता है कि गलत है, लेकिन स्टिल वी आर इनटू इट. ठीक है, बट इन दिस कैटेगरी ऑफ नफ, आई गेस शायद वो अवेयरनेस भी नहीं होती है बहुत ज्यादा कि हम गलत भी हैं. वी आर जस्ट एडिक्टेड टू समथिंग. The first level nafs is governed by an unadulterated intelligence towards something outside ourselves. जैसे अभी मैंने बताया ना, they are not even aware, they are so much ignorant कि पता भी नहीं है कि कुछ गलत भी है. ठीक है, no love for God, no inner control, और and sinful feelings are there. Okay, and the most severe characteristics जो होता है इसका, that is addiction to praise. So be aware. Addiction to praise मतलब आदत होती है ना कुछ लोगों को कि बस हर वक्त उनकी तारीफ होती रहे.
ठीक है, एंड दे आर सो मच एडिक्टेड टू इट कि अगर आप थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म करके देखो एंड देन सी देयर रिएक्शन, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो दिस tyrannical naf. The regretful naf, nafs al lavma. Now this is under the condition. हाँ जी. If we compare Eastern psychology with Western psychology, Eastern psychology resonates more with psychoanalysis as compared to behaviorism or other schools of psychology, right? Right. Okay. Yeah. It seems so. Yeah. Okay, ma'am. So, under the control of tyrannical naf, human beings are essentially insensitive and unaware of the dangers he or she is doing to oneself and others. ठीक है, ये हम पिछले वाले की बात कर रहे हैं जो tyrannical naf था. उनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं अपने साथ, खुद को भी नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान कर रहे हैं. They are harming their self and other people as well. But when the light of faith and inner understanding grows inside oneself, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा फेथ आता है, थोड़ी सी भी इनर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है ना, आत्म जागरूकता, अपने बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान अगर होता है, देन ही और शी बिगिन टू रियलाइज एंड थिंक क्लियरली. तो हम थोड़ा सा क्लियरली सोच पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. हम अपनी मिस्टेक्स को खुद ऑब्जर्व कर पाते हैं. इफ वी मिसबिहेव विद समवन, वी हैव अ इंस्टेंट रियलाइजेशन, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत था, शायद सामने वाला हर्ट हुआ हो. ठीक है, तो दैट इंस्टेंट रियलाइजेशन मीन्स कि हम एटलीस्ट टिरानिकल नफ की स्टेज में नहीं है. वी कैन बी एट रिग्रेटफुल नफ स्टेज वेयर एटलीस्ट वी आर बीइंग एबल टू रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन. हम थोड़ा तो रियलाइज कर पा रहे हैं. His true self nature rejects bad deeds and quickly begs forgiveness of God when he has made a mistake. Realize भी होती है and then they regret it also कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, and then individual even try to like beg for forgiveness for own self. Okay, keeping the God as the authoritative figure. So at times this may happen with anyone. Okay, so when, the moment we realize our mistake, either we try to like rectify it, or we try to like say sorry to the other person or to the self, or if even that is not possible, we try to ask for forgiveness from God. Okay, at least to neutralize the inner conflict. However, at this level of naf, even though we have understood the negative effects of selfishness on the world, yet we have not been able to change. तो यहाँ पे क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है, हमें अपनी इशू समझ में भी आ रहे हैं, हम देख भी पा रहे हैं, गलती होने पर रियलाइज भी कर रहे हैं और शायद फॉरगिवनेस के लिए भी सोच रहे हैं, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू चेंज. हमें पता है लेकिन फिर भी खुद पे काम करना, खुद को बदलना हमारे लिए अभी बहुत मुश्किल है. ओके, दिस इज analogized by Fraser with addicts who are aware of the effect of their addiction, such as ujub, hypocrisy, religious rigidity, alcoholism, drugs, and the glamour of the world. I don't have my phone right now. Can anyone please check the meaning of word ujub? I have forgotten. Rest is hypocrisy, you all know. ठीक है, तो वो कहते हैं फ्रेजर कि ये ऐसी सिचुएशन है कि जब किसी एडिक्ट को पता है. Ma'am, ujub means vanity and self-conceit. It means looks at oneself and thinks how great he or she is instead of praising Allah Almighty. ओके, मतलब एडिक्शन टू सेल्फ प्रेज जैसा ही हो गया ना. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है, थैंक यू शिवी. सो इसमें हम बात कर रहे हैं, फ्रेजर कहते हैं दिस सिचुएशन इज लाइक एन एडिक्ट जिसको पता तो है
कि इशू है कुछ, उसको पता है स्मोकिंग जैसे करते हैं तो कुछ बुरा इफेक्ट है, स्मोकिंग से उसके लंग्स खराब हो रहे हैं, अल्कोहल पीने से उसका लिवर खराब हो रहा है, उसको ये सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज को छोड़ नहीं पा रहा है, एडिक्ट है, अल्कोहल से एडिक्ट है, हिपोक्रेसी है, डुअलिटी है नेचर के अंदर, रिलीजियस रिजिडिटी भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर रिचुअल से या रिलीजियस नॉर्म से बहुत ज्यादा अटैच हो जाना, ड्रग्स, या फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खो जाना, उजुब जैसे कि अभी बताया कि सेल्फ प्रे से एडिक्शन है, मतलब अपने आप को एक ग्रेट समझना, ठीक है, सब सुपीरियर समझना, सबसे सुपीरियर समझना, राइट, जबकि पता होता है देयर इज समवन बिहाइंड, आप सब कुछ अकेले कभी नहीं कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग यू, जिसकी वजह से आप कोई काम कर पाते हो। तो अवेयरनेस तो समवेयर होती है, बट स्टिल दे आर एडिक्टेड टू देयर ओन सेल्फ। So this is this stage of regretful nafs. Then we have inspired nafs, that is nafs al mulima. At this level, human beings, अभी देखना अब लेवल है, पहला लेवल हमने पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब तीसरे पे क्या हो रहा है, they begin to feel the true pleasure in praying, meditating and other spiritual activity. अवेयरनेस और बढ़ रही है, आपकी लेवल 3 पे आ रही है, ठीक है, और अवेयरनेस बढ़ रही है। नाउ आपको पता है हाउ मच प्लेजर इज देयर व्हेन वी प्रेयर, व्हेन वी मेडिटेट और व्हेन वी एंगेज इन एनी अदर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो हम कैसा महसूस कर सकते हैं, हम कितना कनेक्टेड फील करते हैं खुद से, तो दैट इज इंस्पायर्ड सेल्फ। ओके, देन वी हैव ट्रैंक्विल सेल्फ। The ruler and the prime minister at this level of nerves are still the same as the previous inspired nerve, that is wisdom and love. So दो main characteristics जो अभी हमने inspired में मतलब जो आया था, that still continues here, यानी कि आपको self awareness भी हो रही है, ठीक है, now you are meditating, prayer and doing lot of spiritual activities, अब उसकी वजह से एक level up और हो रहा है, you are gaining lot of wisdom, आपका self awareness और बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एंड आपके मन में लव एंड कंपैशन का फीलिंग बढ़ रहा है टुवर्ड्स ऑल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, he quoted Shakespeare, man will be safe from the great destruction of the negative ego when he arrives at this level. तो जब कोई भी ह्यूमन बीइंग इस लेवल तक पहुंचता है, तो what happens, he actually safeguards himself from what, फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव ईगो। जो अभी हमने पीछे उजुब की बात करी, सेल्फ एडिक्टेड, सेल्फ प्रेज एडिक्टेड, सिमिलरली हमने जब हमने फर्स्ट वाले लेवल की बात करी थी, वहां पर भी हमने बात करी थी एडिक्शन टू प्रेज, अपने ही प्रेज को हम हमेशा, वी ऑल वांट टू गेट प्रेज 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 एंड एडिक्शन, और थोड़ा भी कोई नहीं करता है तो वी गेट लाइक सो अपसेट एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वहां पर बार बार ईगो टैप हो रहा है, फर्स्ट लेवल में बहुत ज्यादा ईगो था, सेकेंड लेवल में भी देयर वाज सर्टेन लेवल ऑफ ईगो, लेकिन जैसे ही आप इंस्पायर्ड में शिफ्ट को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, और जैसे ही आप ट्रैंक्विल में गए, ट्रैंक्विल सेल्फ में आपने खुद को लूज कर दिया कंप्लीटली, तो जब आप खुद को लूज करने लगते हो तो ईगो डिसॉल्व्स कंप्लीटली, ठीक है, और वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है। Now with this nerve, according to Sahl bin Abdullah, man will feel happy and quiet to his Lord. Therefore, his spiritual condition will become strong. Then everything will be happy and sympathetic to him. So again, उसी को expand करते हुए, at this stage, the person actually experiences that stage of happiness, or you can say bliss. ठीक है, जब हम खुद को lose कर देते हैं, we are all full of love. So at this stage, we actually feel very happy, very blissful, very quiet from inside, very connected with the Lord. Okay? And even very connected to each and every being. Then we have happy nerves. When entering the level of tranquil nerves, human spirit becomes soft. So then, at this level, spiritual growth becomes deeper. तो अब हम एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और ज्यादा डीप होती जा रही है। At this level, man is satisfied with his destiny and all the difficulties and tests of life that also comes from God, because he realizes that God's mercy and compassion surround him continuously. So at this point, what is happening?
man is very much satisfied whatever he has achieved so far, whatever has happened in his life, whatever goods and bads he has gone through. He accepts everything as coming from God, and he's like very satisfied in his life. Okay, and he realizes that his life is on God's mercy and all loving to him. Okay, he can feel the compassion coming from God towards him. When human gratitude and love to God are so great, then bitter thing according to the laity will be sweet to them. यानी कि जब कोई भी human being, ठीक है, when a person vibrates at that level of gratitude, कहते हैं ना gratitude and love are the highest vibration, ठीक है, it dissolves everything. So gratitude is also one of those positive emotion, you can say positive feeling, you can say. With the help of that, you actually feel like so much close to other beings, so much close to God, that anything anything never seems bitter to you. या life में अगर कुछ बुरा भी होता है ना, तो you can digest that also, because you have tendency to see what good has happened in your life, and you are so grateful about it. आपको ये life मिली है, ये body मिली है, and you are experiencing everything around you. Okay, so obviously it is natural for one to feel gratitude about it, but and once that feeling of gratitude is activated, is higher, ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ की वो डिसॉल्व हो जाती है या वो पास थ्रू हो जाती है. वी डोंट एक्सकलेट आवर प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम. वो हमें परेशान नहीं करती. हमें पता है, हमें ऐसा लगता है दैट लाइफ इज टेकिंग टेस्ट एंड वी आर रेडी टू गिव दैट टेस्ट, एंड इट इज फॉर आवर बेनिफिट ओनली, इट इज फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ ओनली. ओके, then other characteristics of people about this stage is people experience some sort of miracles, they feel free, they have some sincerity within them towards devotion, start contemplating more and more, then recollection of God and the stage of meditation. So you can see, matlab, the happy nerve stage is even more deeper, the more spiritual self, and we experience everything in life as if some miracle is being happening towards you, to in your surroundings. Okay, so when you are in that stage, you will feel so much connected that you keep thinking, pondering upon yourself. आत्म चिंतन में रहोगे, meditative stages में रहोगे, ईश्वर का चिंतन, अल्लाह का चिंतन करोगे. Okay, then nafs which is pleasing to God, nafs al mardiya, happy nafs के बाद, which is pleasing to God. This stage of nafs is the level of inner marriage between the nafs and the soul. It is similar to connecting with our own self. जो हम starting से बात कर रहे हैं Eastern philosophy में, the main aim is to connect with our own true self. So even Sufism talks about soul. Only Buddhism never talks about soul. They call it anatta. They use the term anatta Buddhism में, जहाँ पे वो soul की बात नहीं करते हैं. ठीक है, उनके लिए self is anatta, not soul. But Sufism also talks about soul, और उनके लिए again the last stage is when yourself, your nafs is getting connected with your soul. That is the end of your journey. At this level, human beings acquire true inner unity, union. ठीक है, योग पढ़ा था ना हमने, योग is also union. So they are also talking about true inner unity and are able to perceive the world as a holistic entity. पूरी दुनिया एक ही लगेगी, क्योंकि what is within you, that is also, जो मुझ में है वो आप में है और वो ही पूरे विश्व में है. ठीक है, so by entering into the self denial realm, इसका क्या मतलब है? We are denying the self, क्योंकि जब self सोल में मर्ज हो जाएगा तो सेल्फ की कोई यूनिक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, ईगो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, एंड दैट इज दैट ब्लिसफुल स्टेज, योर ट्रू आइडेंटिटी स्टेज. ओके, द sacred nerve. In the level of sacred nerve, there is no longer ego or self.
लास्ट अल्टीमेट, कुछ ईगो नहीं बचा है, कोई सेल्फ नहीं बचा है, क्या बचा है? यूनियन विद गॉड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, जस्ट अभी जो थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा था, एट दिस पर्टिकुलर स्टेज द नफ was connecting with soul. ठीक है, and once you get this kind of connection, you are in your true self. ठीक है, now when you are in complete union with your own self, that is the moment when you can connect with the supreme self, that is God, that is Allah. okay, जहां पे आपका बिल्कुल भी कोई इंडिविजुअलिटी, कोई यूनिकनेस, कोई ईगो और सेल्फ बचता नहीं है. दैट इज द अल्टीमेट स्टेज ऑफ एक्सटेसी. ओके, जहां आप खुद को भूल जाते हो, आपका कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं बचता है. तो एक बार नफ और सोल कनेक्ट हुए, यू अटेन योर ट्रू आइडेंटिटी. खुद को पूरा अटेन करने के बाद यू विल ट्राई टू अटेन or merge into the supreme self. Okay, Fraser further mentioned this condition with parable dead before death. So this is a phrase which is being used for this situation, for this level, and ki dead before death. Anyone will try to comprehend this? कोई बताना चाहेगा why is it said so? सृष्टि? कनेक्ट हो गया था मैम कुछ देर से. आई वाज ट्राइंग टू लेट माय सेल्फ इन. मैम क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है, ये जो लास्ट स्टेज है सेक्रेड नफ की, इस स्टेज को डिफाइन किया गया है बाय सेइंग अ फ्रेज डेड बिफोर डेथ. व्हाई? अच्छा मैम, आई थिंक इसका मतलब ये है कि पहले अपने आप को वी हैव टू, मतलब हमें अपने आप को पहले अपने आप को डेड करना है. डेड मतलब टू renunciate ourselves from each and every desire, from each and every outer self जिसमें हम बहुत इन्वॉल्व रहते हैं. जब हम वहां सबसे पूरे मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद वो टर्म आता है डेथ का, जहाँ पर हम अल्टीमेट अपने अल्लाह से पूरे मिल जाते हैं, उनमें फना हो जाते हैं, जो इसमें टर्म आता है कि फना हो जाना. तो वो तभी हो पाएगा जब अपने सारी चीजों से वी आर डेड, लाइक वी आर नॉट कनेक्टेड टू इट एट एनी एक्सटेंट. राइट, राइट. तो आई गेस यू कैन कॉम्प्रीहेंड इट. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ना अल्टीमेट स्टेज, जैसे हम योग में समाधि की बात करते हैं ना, आई गेस इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट, है ना. तो बीइंग डेड बिफोर डेथ, सो यहाँ पर जो डेड वर्ड है, इट इज अबाउट लूजिंग योर सेल्फ. सिंपल सा बात है यहाँ पे. जैसे कि अभी सृष्टि ने भी एक्सप्लेन किया, टू रीच दैट स्टेज हमें छोड़ना पड़ेगा. वी हैव टू लाइक अब हमारे डिजायर्स नहीं बचने चाहिए, तब तक सब फुलफिल हो जाना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन अंदर आ जाना चाहिए, एक खुद के साथ, अपने सोल ट्रू आइडेंटिटी के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ईगो पूरा डिवॉल्व हो चुका होगा, कोई यूनिक आइडेंटिटी हमारी नहीं बची हो. ओके, सो दैट इज द स्टेज. जब कोई डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं होगी, तो दैट इज लाइक अ डेथ टू अस ना. So that is why they have mentioned death before the actual death. Okay. मैम एक कोट भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी. एक जो सूफी यूनुस एमरी करके एक पोइट हुए हैं टर्की के, उनका एक कोट है कि ओनली द वर्ड आई डिवाइड्स मी फ्रॉम गॉड. तो यहाँ पे ये बहुत सूट होता है कि ये जो आई का वर्ड है, ये बस यही एक डिफरेंस है मेरे और अल्लाह के बीच में. अगर मैं इस आई को ही हटा दूंगा तो आई बी एबल टू फना माई सेल्फ टू अल्लाह. तो मतलब वो आई हटाना है, टू रिमूव दैट आई. Right. This is perfect. So that I denotes ego, right? और वो so called I, ego, self, जब वो remove हो जाता है तो one can get aligned or merged into the supreme self. कोई अपनी unique identity नहीं बचेगी. ठीक है, तो that is the ultimate stage है. Is it fine to everyone? All the levels are clear? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, in regretful self,
in regretful nerves, we can say that there is no peoples में कि बिल्कुल वो regretful नहीं होते. In some situation कहीं उनको रिग्रेट हो रहा है किसी सिचुएशन में, कहीं वो दोबारा उसी सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं. राइट राइट, उनको रिग्रेट तो होता है, कभी कभी हम्म, थोड़ा सा रिग्रेट तो होता है, फील तो हो जाता है, बट वो अपने आप को उस चीज से बाहर नहीं निकाल पाते हैं. मतलब वो बार बार वो गलती रिपीट करते हैं. उनके लिए डिफिकल्ट होता है उस सिचुएशन से हाँ. अपने आप को बाहर निकालना. राइट राइट, तो इसलिए वो बार बार रिग्रेट में जाते हैं फिर. ओके ओके. और मैम हम अभी जैसे हम बात की थी कि सूफिज्म भी बोलता है कि हमारा जो माइंड और बॉडी जो मतलब देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, जो हम वेस्टर्न में भी बात करते हैं मोनिज्म और जो डुअलिस्टिक की बात करते हैं, तो हम यहाँ भी ये बोल सकते हैं कि सूफिज्म भी मोनिज्म की बात कर रहा है. हाँ, क्योंकि वो भी माइंड बॉडी की बात करते हैं कि जो मोनिस्ट और जितने भी मोनिस्ट हुए हैं वेस्टर्न फिलोसफी में, उन्होंने भी ये बोला है कि माइंड और बॉडी आपके दो अलग नहीं है, वो एक ही है. और सूफिज्म भी यही बात बोल रहे हैं, सूफिज्म फिलोसफी भी यही बात बोल रही है. तो हम इनको भी बोल सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं वही वाली बात बोल रहे हैं जो वेस्टर्न फिलोसफर्स ने बोली है. हाँ मोनिज्म हाँ, की. जब इन्होंने नफ का कॉन्सेप्ट लिया, सेल्फ का कॉन्सेप्ट लिया, तो उसमें वो सब कुछ ही लेके चल रहे हैं. इनका काफी ब्रॉडर सेल्फ यस मैम. है ना. यस. है ना. और उसी नफ्स में उन्होंने स्टेजेस बना दिए हैं कि नफ्स एक्चुअली वो आपके अल्टीमेट स्टेज को भी नफ बोल रहे हैं, और आपकी ये जो ईगो वाली स्टेज है उसको भी नफ बोल रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि आपको इस नफ की रेंज को कवर करना है, आपको ईगो से अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंचना है. यस मैम. है ना. यस. ओके मैम, थैंक यू. Okay. Now, another concept here is kalb. So, in Sufi psychology, the heart refers to the spiritual heart. ठीक है, फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं हो रही है आपके, द स्पिरिचुअल हार्ट की बात हो रही है. ठीक है, इट इज द स्पिरिचुअल हार्ट दैट कंटेन्स डीपर इंटेलिजेंस एंड विजडम. तो वो कहते हैं हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल हार्ट होता है जिसके पास सारा विजडम है, इंटेलिजेंस है. जैसे हमारी इंट्यूटिव फीलिंग्स की हम बात करते हैं ना, देयर इज सर्टेन फीलिंग्स इंट्यूटिवली, या कुछ ज्ञान हमें अंदर से आता है ना. So it holds the deep spiritual knowledge, and so in Sufism the major goal here is to develop a heart that is sincere, loving, compassionate. तो main goal क्या है? We have to develop that spiritual heart. मतलब आपको अपने spiritual heart को strong बनाना है, जिसमें sincerity हो, dedication हो, love and compassion हो सबके लिए, आपका wisdom हो, intelligence हो. ठीक है, and you can like that will help you to go more deeper into your spiritual journey, या आपकी spiritual growth को वो और ज्यादा enhance करेगा. ठीक है, so it develops the heart's intelligence which is deeper, more grounded than rational. ठीक है, abstract intelligence of mind. तो they are talking about your abstract intelligence, that is also very important. तो एक तो हमारा logical intelligence होता है, but at times we have some abstract intelligence also. हर situation में logical intelligence काम नहीं कर पाता है, right? So वो abstract intelligence, वो intuitiveness हमें कल्ब से आती है, spiritual heart से आती है, according to Sufism. Just as the physical heart supply blood to the body, spiritual heart nourishes the soul with wisdom and spiritual light, and it purifies the gross personality traits. यानी कि जब आपकी अंदर spiritual growth होने लगेगा, तो definitely it is going to affect your personality overall. ठीक है? According to Sufi psychology, emotions are from the self or nafs, not from the heart. तो this seems to be a good point here. Sufic psychology के हिसाब से हम जब emotions की बात करते हैं, so emotions are from nafs. Emotions वहां से arise होते हैं. Heart जो कल्ब की बात हो रही है सूफिज्म में, वहां से emotions arise नहीं होते हैं. The kalb mediates between nafs and the spirit. Its task is control the nafs and direct the man towards the spirit. तो वो कह रहे हैं there is nafs, जो self की हमने picture देखी थी, there is spirit where we have to merge actually. ठीक है,
जो हम सोल की बात करते हैं, जो अल्टीमेट जहाँ पे मर्ज हो जाना है, एंड कल्ब इज इन बिटवीन एंड इट इज मेडिएटिंग दिस जर्नी। नर्व्स और स्पिरिट के बीच में कल्ब मेडिएट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जैसे अभी बात करी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग यू, दैट विजडम इज हेल्पिंग यू कि आप इस नर्व्स की जर्नी को क्रॉस कर सको और स्पिरिट में मर्ज हो सको, ओके, स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो सको। तो कल्ब एक्चुअली हेल्प्स यू इन दैट डायरेक्शन। Then another concept here is ruh, that the concept of spirit again. The ruh is in direct connection with the divine. तो आपकी जो spirit होती है वो जब divine के साथ connection में रहती है, the actual divine energy, even if one is unconscious of that connection, तो वो कहते हैं हो सकता है अभी हमें consciously हमें पता नहीं है that we are connected with divine, but it is there, okay? दैट इज वाई हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस ट्रू इंटेलिजेंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? दैट इज वाई वी ऑल फील कनेक्टेड एट टाइम्स। द स्पिरिट हैज 7 लेवल्स और फेसेट्स ऑफ द कंप्लीट स्पिरिट। दीज लेवल्स आर, ये स्पिरिट के 7 लेवल्स बताए गए हैं, मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल, इंडिविजुअल, सीक्रेट और एंड सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सोल्स, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट सोल्स, ये उसके 7 लेवल है। ईच लेवल रिप्रेजेंट द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो लेवल्स की अब बात हो रही है ना यहाँ पे स्पिरिट के लेवल्स की, इट इज इंडिकेटिंग द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है? तो जैसे हम बात करते हैं ना, पहले जैसे कहते हैं बीज है, बीज के अंदर फिर न्यूट्रिशन है, फिर उससे सब्जी बनी, वेजिटेबल प्लांट आया, ठीक है? फिर धरती पे नेचर बनने के बाद एनिमल फॉर्म आए, एनिमल फॉर्म के बाद धरती पे ह्यूमन फॉर्म्स आए, बट इन सबके अंदर स्पिरिट है ना, हम इन सबको लिविंग बोलते हैं, इवन हम प्लांट्स को भी लिविंग बोलते हैं, राइट? तो यानी कि इन सबके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस है, कुछ इंटेलिजेंस है, राइट? प्लांट्स की अपनी इंटेलिजेंस है, उनको पता है कब क्या करना है, कब कैसे फूल बनेगा, कब कैसे फल बनेगा, कब झड़ना है पत्तों को, कब नए फल और फूल आएंगे, राइट? So they all have some kind of intelligence within them, okay, some kind of spirit within them. So these are stages of evolution: mineral, vegetable, animal, animal के बाद human form आए, ठीक है? human, फिर humans में भी अलग अलग individual forms आए, ठीक है? then they talk about secret and secret of secret souls, ठीक है? यानी कि जो बहुत evolve हो जाते हैं, उन human beings की बात हो रही है, ठीक है? जो ग्रेजुअली खुद को डिस्कवर कर पाते हैं, अपनी स्पिरिट को खुद जान पाते हैं। प्लांट में एबिलिटी नहीं है अपनी इंटेलिजेंस को समझने की, वो बस नेचुरली काम कर रहा है अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, कनेक्टेड है इंटेलिजेंस के साथ, काम कर रहा है, लेकिन वो उसको जान नहीं सकता। वो एबिलिटी सिर्फ हमारे पास आई थी, ठीक है? एंड ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स ने खुद को इवॉल्व किया ताकि वो उस सीक्रेट को, अपने अंदर वो जो सीक्रेट है, जो स्पिरिट है, उस तक पहुंच सके, उसको जान सके। The spirit is holistic and extend to all aspects of person, body, mind and the soul. तो ये जो spirit का concept है, that is overall. कह रहे हैं कि mind, body, soul सब कुछ spirit के अंदर आ जाता है, ठीक है? According to them, this concept of spirit is पूरा। spirit से the word spiritual, जो spiritual word हम बोलते हैं, वो spirit से बना है, ठीक है? तो सूफीज्म भी spirit को follow कर रहा है, and spirit encompasses everything. Each level of the spirit has valuable gifts and strengths as well as weaknesses. The goal is to develop the strengths and to achieve a balance between these levels, not forging the lower ones to focus only on the higher ones. तो कहते हैं यहाँ पर जो गोल है वो ये रहता है कि आप अपने जो ये स्पिरिट है उसके जो जितने भी हम लेवल्स देखते हैं, ठीक है, हमारे अंदर वो जो कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं, हम उसमें एक बैलेंस क्रिएट कर सके, ओके? वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन देम सो दैट हम अपने ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग के लिए खुद काम कर सके, ठीक है? तो वी हैव सर्टेन स्ट्रेंथ, वी हैव सर्टेन वीकनेस। अपने माइंड, बॉडी, सोल को जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हमें उसका स्ट्रेंथ भी पता है, हमें उनका वीकनेस भी पता है, एंड वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस अमंग ऑल ऑफ देम ना। माइंड भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बॉडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोल पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके? सो
ऐसा भी नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल जर्नी वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द सोल, but we are ignoring the body, we are ignoring the mind, because again disbalance will be created. ठीक है. Now the main principles of Sufism, the principle of Sufism called Irfan in the original Persian has been repeatedly presented. तो क्या क्या principles Sufism में बताए जाते हैं? One is zikr. जिक्र मीन्स टू रिमेम्बर, यानी कि गॉड का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना, नाम लेना अल्लाह का बार बार. ठीक है, दैट इज जिक्र. अनदर प्रिंसिपल इज फिक्र, यानी कि टू मेडिटेट अपॉन गॉड, टू थिंक अबाउट हिम. ठीक है, पहले हम जिक्र कर रहे थे, यानी कि स्पीच, हम नाम ले रहे थे, बार बार उनका हर काम में नाम ले रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे. अब हम फिक्र कर रहे हैं, यानी कि हम कॉग्निटिव लेवल पे बात कर रहे हैं, हम उनका चिंतन कर रहे हैं. ठीक है. सहर, यानी कि टू अवेकन. द स्टेज टॉक्स अबाउट अवेकनिंग ऑफ आवर सोल एंड बॉडी. अपने बॉडी को, अपने आत्मा को हम जगाने की बात कर रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचाने के लिए हम वी आर ट्राइंग टू अवेकन इट. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सहर. देन जुई, दैट इज हंगर. So having exterior hunger, यानी कि mind, and interior hunger, यानी कि heart, to persist in the search and to obtain the truth. यहाँ पे simply जो बात हो रही है, भूख की हो रही है, और हम खाने वाली भूख की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेंटल क्रेविंग्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अपने हार्ट में ठीक है, वहां से जो क्रेविंग हो रही है उसकी बात कर रहे हैं. और कौन सी क्रेविंग की बात कर रहे हैं? द सर्च ऑफ ट्रुथ. तो हमारे अंदर वो जो इच्छा होती है स्पिरिचुअल जर्नी की टुवर्ड्स जाने की, खुद को जानने की, हम उस हंगर की बात कर रहे हैं, उस मेंटल हंगर की बात कर रहे हैं, उस इनर हंगर की बात कर रहे हैं. ठीक है. देन सौमत, तो इट इज अबाउट टू ऑब्जर्व साइलेंस. तो जब हम शांत रहते हैं, व्हेन वी ट्राई, अगेन एक मेडिटेशन का ही टाइप हो गया, लेकिन व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट थिंकिंग, जब हम बोलते नहीं है तो ऑटोमेटिकली थॉट्स हमारे ग्रेजुअली कम होने लगते हैं. ठीक है. बट अगर हम बहुत ज्यादा वर्थलेस टॉकिंग में एंगेज रहते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो इट डाइवर्स, इट डेविएट्स आवर माइंड. ठीक है, फ्लक्चुएट्स आवर थिंकिंग. योग में भी हम ये सिमिलर बात पढ़ते हैं, योगाश चित्त वृत्ति निरोध. वहां पे भी गोल यही होता है, अपने चित्त से वृत्तियों को हटाना है. तो क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बात करते हैं किसी भी मैटर पे, तो इट गोज ऑन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग अप्स एंड डाउन चलता रहता है, फ्लक्चुएट करता है. तो टू ऑब्जर्व साइलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल है. देन सॉम, यानी कि फास्टिंग. तो फास्टिंग ऑफ बॉडी, माइंड एज वेल एज हार्ट. जब आप बॉडी फास्ट करोगे, ठीक है, तो डिटॉक्स तो होता ही है बॉडी, बट अदरवाइज ऑल्सो यू फील लाइट. ठीक है, यू फील लाइट, और आपका माइंड भी शांत होना शुरू होता है. फ्लक्चुएशन, जो एक्स्ट्रा फ्लक्चुएशन है वो कम होती है. देन आपका मेडिटेशन बेटर होता है, आप चिंतन और बेहतर तरीके से कर पाते हैं. ठीक है, तो फास्टिंग बॉडी का भी करना है, लेकिन माइंड का भी करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना एक दिन के लिए, ठीक है, तो वो भी क्या हुआ, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फास्ट, because you are stopping your mind from engaging by certain things, engaging in certain things, right? तो similarly mind का, then heart का. ठीक है, आपको नेगेटिव इमोशंस के साथ वहां पे, सॉरी नॉट एग्जैक्टली इमोशंस, बट जो नेगेटिव पैटर्न होता है हमारा थिंकिंग का, उसके साथ डील नहीं करना है. ठीक है, तो वहां पर भी फास्टिंग be on a path for our spiritual growth. ठीक है, controlling each and every aspect of ourselves. Then we have one principle of khalwat, that is to observe solitude. ठीक है, praying in solitude, थोड़ा सा अलग रह के, ठीक है, एकांत में रहना, कुछ टाइम अपने साथ एकांत में बिताना, that is solitude. एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी. Again, meditating upon your own self.
देन खिदमत इज टू सर्व, दूसरों की सेवा करना, ठीक है। डिजॉल्विंग इन द ट्रुथ ऑफ द मास्टर एंड डिजॉल्विंग इन द ट्रुथ ऑफ एग्जिस्टेंस, सेवा करना, गुरु की सेवा करना जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करता है, ठीक है। पूरे नेचर की एग्जिस्टेंस की सर्विस करना जो आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो टू सर्व अदर। सो दीज मैम वर द प्रिंसिपल्स ऑफ, हाँ जी मैम ये सेवा वाला कॉन्सेप्ट सर्व वाला ये सिखिज्म में भी है। हाँ हाँ, सिखिज्म में भी है, राइट। उनमें तो आई गेस ये बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है। जी जी। Yes, ma'am. हाँ जी। Then Sufism offers a comprehensive approach to sacred psychology with ultimate aim of self-knowledge and self-acceptance. तो again main aim क्या है यहाँ पे भी? To know your own self and to accept your own self, who you actually are. The collective experience and knowledge from Sufi practices make available to us today through understanding of who we are as human beings. तो psychologically ये कैसे हमें मदद कर रहा है? Again, Sufism के जो principles हैं, they are helping us to know our own self, okay, and know our own purpose, kind of it adds some यहाँ पे क्यों है, हमारा मेन गोल क्या है, ठीक है, खुद को जानना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना. It revealed to us the principal aspects of our nature and a way to transform ourselves to become true instruments of manifestation of divine love, divine consciousness and divine action. We'll focus on this statement. It is a way to know our own nature. साइकोलॉजी में हम क्या बात करते हैं? खुद को जानना, ठीक है. हम पहले क्या करते हैं? वी ट्राई टू नो आवर ओन सेल्फ ना. हमें अपने कॉग्निशन, अपने थिंकिंग पैटर्न को पहले समझना पड़ता है, राइट. अगर कोई काउंसलिंग के लिए भी आपके पास आता है तो आप पहले उसको साइको एजुकेट करते हो ताकि वो समझ तो पाए उसके अंदर चल क्या रहा है, उसके दिमाग काम कैसे कर रहा है, उसका माइंड कैसे उसके साथ प्ले कर रहा है, राइट. तो पहले हम अपने नेचर पे फोकस करते हैं. तो सूफीज्म के प्रिंसिपल्स भी हमें अपने नेचर पे ही ध्यान दिलाते हैं. जब हम नफ्स की स्टेजेस पढ़ रहे थे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को शायद रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ, ये वाला सेल्फ का मोड आता है, कभी तो आया है, कभी हमने ये फेस किया है, कभी तो हम रिग्रेटफुल सेल्फ में भी गए हैं, अरे कभी हमने उससे ज्यादा ऊपर ट्रैंक्लिन सेल्फ में भी एक बार कभी एक्सपीरियंस किया है. तो कभी कभी हो सकता है हमने जो हैप्पी स्टेजेस थी शायद हमने कभी वो भी टच की हो, राइट. तो दैट इज द नेचर ऑफ आवर ओन सेल्फ जिसको जानने में मदद मिलती है. और वंस यू नो योर ओन सेल्फ, जब आप खुद को जान जाते हो तभी आप खुद को बदल सकते हो, राइट. जब हम काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो पहला क्या होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आपके क्लाइंट को इंसाइट तो आ जाए, इंसाइट अबाउट व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, है ना, क्या उसका सिचुएशन है. और जहां इंसाइट होता है वहां इट इज मच इजियर कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ काम कर सकते हैं, उसकी हीलिंग की तरफ काम कर सकते हैं. तो वंस यू नो योर ओन सेल्फ देन यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. एंड जब हम उसको खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो अगेन सूफीज्म के पर्सपेक्टिव से देयर इज अनदर डायमेंशन टू इट. जब हम खुद को बेहतर जान लेते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को, अपनी स्ट्रेंथ को, वी कैन यूज इट इन अ बेटर मैनर ताकि हम क्या मैनिफेस्ट कर पाए. हम एक तो डिवाइन विल के हिसाब से काम कर पाए. डिवाइन विल को आप समझ सकते हो विच इज बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑल, ठीक है. तो हम उस विल के अकॉर्डिंग काम करते रहे, ठीक है, rather than being selfish in nature. डिवाइन विल के साथ कनेक्टेड रहे, डिवाइन लव अपने अंदर मैनिफेस्ट कर पाए, डिवाइन कॉन्शियसनेस हमेशा उससे कनेक्टेड रहे. एंड देन डिवाइन एक्शन इज वही कि टू एक्ट इन कनेक्शन विद डिवाइन. When you feel in sync with the divine, when you feel in sync with the whole universe, आपको कभी कभी लगता है that you are going in the right direction, या यही आपकी लाइफ का पर्पस है. I guess that moment can be referred to as that divine action उस वक्त, ठीक है. And if the nafs dominate, the heart becomes darkened and weakened and ineffective. तो नफ्स की ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं, ईगो वाली स्टेज की बात कर रहे हैं. इफ ईगो डोमिनेट्स तब हमारा हार्ट जो है, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, कल्ब की बात कर रहे थे, दैट वीक्स.
If the force of soul take over the heart, it becomes transparent and illuminated. तो अगर सोल जो है वो हमारे हार्ट को ओवर पार कर जाता है, यानी कि सोल की जो पार है, एनर्जी है, वो हमारे स्पिरिचुअल हार्ट को कैप्चर करने लगता है, तो उसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो डार्कनेस थी ना, ये खत्म होने लगती है। अगर हमारे अंदर दैट स्पिरिचुअल स्पार्क अवेकन्स, तो ये डार्कनेस ऑफ इंटेलिजेंस है वो हटने लगता है और हम स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रो करने लगते हैं। टू नो द रियल डेप्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मीन्स टू नो intimately and masterfully these three parts and to be able to harmonize and unify them. तो वो according to Sufi philosophy वो कह रहे हैं नफ, कल्ब एंड द स्पिरिट की, जो रूह की इन्होंने बात करी थी। तो वो कहते हैं जो मेन मोटिव है हम लोगों का वो यही होना चाहिए कि कैसे इन तीनों को कंप्लीट हार्मनी में लेकर आए, कनेक्टेड करें, बैलेंस करें, ओके, so that you can actually know your real self, connect with your real self and ultimately connect with the ultimate self. Okay. हजरत इनायत खान जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो इसको, इस नॉलेज को वेस्ट तक लेके गए थे, वो लिखते हैं इट इज द कमिंग ऑफ द सोल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू मैनिफेस्टेशन and it's returning again from manifestation to its original condition that makes life journey. Anyone will try to comprehend this? इतना हमने पूरा सूफी फिलॉसफी जाना है, इस बात को आप कोई भी समझाना चाहेगा वो क्या कह रहे हैं? मैम इसमें ये कहना मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी रूह है, जो हमारा सोल है, वो एक ओरिजिनल डिवाइन से आता है, परवरदिगार से आती है वो रूह हमारी, और एक जर्नी वो फॉलो करती है जिसको हम लाइफ बोलते हैं, और फिर वापस वो अपने परवरदिगार में फना हो जाती है। Right. So true. Actually, they are talking about that only. That soul is like coming from its origin, supreme, जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है, अल्लाह बोल रहे हैं। तो सोल वहीं से आया था, वही उसका ओरिजिन था, मैनिफेस्ट हुआ ह्यूमन फॉर्म में, लाइफ फॉर्म में, ठीक है, और इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी वहीं जाके मर्ज हो जाना है। एंड इस पूरी जर्नी, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके बीच में हमारी लाइफ की जर्नी होती है। सो दैट इज मीनिंग, ठीक है। एंड जब ऑब्वियसली जब आप अपने इस सोल फॉर्म से कनेक्ट होते हो, तो आप सबके साथ कनेक्टेड फील करते हो, विच इज रिटन हियर। सबके साथ कनेक्टेड फील करते हो, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली फीलिंग रहेगी, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे एंड डिवाइन के साथ भी कनेक्ट करोगे, ओके। एंड यू विल ऑलवेज फील दैट सेंस ऑफ ब्लिस विद इन यू, एक सेंस ऑफ जॉय आपके अंदर रहेगा being in that stage. So I guess this is the end of Sufism here. Any queries to anyone? Then we can have today's poll. Okay, so you can answer to the poll. Arrange the level of self naf of Sufism in correct order. 1 is secure self, 2 is pure self, 3 is commanding self, and 4th is inspired self. Only one vote. Other people, please answer.
Okay, so we have got 4 votes for B. Any would will like to explain this? जिन्होंने आंसर दिया है प्लीज एक्सप्लेन ऑल्सो, क्यों दिया है ये आंसर, क्या मीनिंग है? मैम फर्स्ट इज द कमांडिंग सेल्फ. अभी जो हमने बात की है ट्रिनिकल सेल्फ में जो हम कमांड्स की बात कर रहे हैं, खुद को हम जो कमांड्स दे रहे हैं, ट्रिनिकल सेल्फ को हम कमांडिंग सेल्फ भी बोलते हैं. सेकंड इज द इंस्पायर्ड सेल्फ. आफ्टर द ग्रेटफुल सेल्फ, द नेक्स्ट स्टेज इज द इंस्पायर्ड सेल्फ, जहां पर हम रिग्रेट के बाद जहां पर हम इंस्पायर फील करते हैं. That is the and third is the secure and serene self, जहाँ पर people क्या करते हैं, secure feel करता है, means is the previous stage of pleasing to God self. And the last is the pure self. Pure self is the last stage. Okay, so that is the correct answer यहाँ पे. So again, explaining this again, commanding self, जब हम स्टार्टिंग में tyrannical self की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था ना, वो डोमिनेटिंग होते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, खुद मतलब बहुत ज्यादा हर चीज को कमांड करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, नेगेटिवली डोमिनेटेड रहते हैं. ठीक है, दैट इज द कमांडिंग सेल्फ. अपनी हैबिट से मजबूर है बहुत ज्यादा. ठीक है, एंड देन हम वी जम्प टू इंस्पायर्ड सेल्फ लेटर ऑन. बीच में रिग्रेटफुल सेल्फ आता है और फिर इंस्पायर्ड आता है, जहां हम थोड़ा सा एनलाइटन होने लगते हैं, थोड़ा प्रेयर मेडिटेशन में जाने लगते हैं. ठीक है, एंड देन बीच में फिर और स्टेजेस आती हैं. फिर जब हम सिक्योर सेल्फ की तरफ ज्यादा, जब हम गॉड से रिलेट करने लगते हैं खुद को, तो हम थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे अंदर आता है. ठीक है, ठीक है, हम सेफ, हमने पढ़ा था, हम बहुत सेफ फील करते हैं. वी फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ, हमने ये टर्म्स पढ़े थे, राइट? सो वो सिक्योर सेल्फ होता है. एंड फाइनली द टर्म इज प्योर सेल्फ, यानी कि जो अल्टीमेट स्टेज ऑफ प्योरिटी है. ठीक है, जहां पे हम बिल्कुल ईगो फ्री हो जाते हैं. so that is the last pure self वाला stage. Is it fine? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so any doubt to anyone from this class? Okay then, see you guys tomorrow. And tomorrow we'll have a class on integral yoga. Okay, so very important concept. And Okay, ma'am. tomorrow we'll have class, I guess, at 4. Right? Yes, ma'am. 4 to 6. Yeah. ठीक है? Yes, ma'am. Okay then, thank you everyone. See you guys tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम बहुत अच्छा लेक्चर था और ये मेरा Thank you, ma'am. फेवरेट टॉपिक है, Thank तो you. और भी ज्यादा मजा आया. वो तो आज हमको पढ़ के. समझ गया Thank you था so much, सृष्टि. ma'am. Oh, nice. लग ही रहा था वो जिस तो. हाँ. तरीके से पूरी उर्दू बाहर आ रही थी तो हमको तो समझ गया था. धन्यवाद. शुक्रिया. Okay guys, see you tomorrow. इसको भी नहीं, इसको भी तुम उर्दू में बोलो. धन्यवाद हिंदी हो गया. यही शुक्रिया. शुक्रिया. हाँ. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह खैर. नाइस लेक्चर मैम. थैंक यू मैम. Thank you so much, ma'am. Okay, okay. Thank you everyone. See you tomorrow guys. Take care.